Hello students. Today we are going to start graphical representation of data. Graphical representation. It is a way of analyzing numerical data. It exhibits the relation between data, ideas, information and concepts in a diagram. It is easy to understand and it is one of the most important learning strategies. Next, come to the graphical representation of continuous frequency distribution. Under this, the first one is histograms. In this case, the rectangles are drawn with class intervals as bases and their heights are proportional to the frequencies of respective classes. The most important point is, first of all, we have to convert the data into exclusive form if it is in the inclusive form. We have to take the suitable scales. We have to take frequencies along the y-axis and the class intervals. We have to take that class intervals on x-axis. But before this thing, we have to check whether our data is in inclusive form or in exclusive. And the scale chosen, that need not be the same for both. Now come to the first example of histograms. See, in this example they said draw a histogram to represent the following. We have to draw the histogram. It is given to us that the class intervals, Ci represents the class intervals. These class intervals are from 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. See, the upper limit of the first class interval is equals to lower limit. So these class intervals are exclusive. As we have studied, if we find inclusive class intervals, then we have to convert them into exclusive. But already intervals जो हैं वो exclusive form में हैं, so हम direct plot कर सकते हैं अपना histogram. Graph copy आपने लेनी है. Graph copy पे बच्चे you have to show x-axis and y-axis. Along the x-axis we have to take class intervals, and along the y-axis frequencies should be there. Now see, we are having the first class interval 0 to 10. This is 0. Division की है हमने 10, 20, 30, 40, 50, 60 and so on. And along this y-axis frequencies हमने ली 2 2 के डिफरेंस पे 0 to 2, 2 to 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and so on. Now see, for the interval 0 to 10, the frequency, corresponding frequency is 7. This is interval 0 to 10, corresponding frequency 7 lies between 6 and 8. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 7. For the interval 10 to 20, this is interval 10 to 20, the frequency is 12. तो हमने 12 के corresponding अपनी frequency जो है वो plot कर दी. ठीक, this is for the interval 0 to 10 to 20, frequency है हमारे पास 12. Then for the interval 20 to 30, this is 20 to 30 interval, इसके corresponding frequency है हमारे पास 15. तो हमने 15 प्लॉट कर दिया अपना हिस्टोग्राम. अब था क्या हिस्टोग्राम? हम हिस्टोग्राम प्लॉट कर रहे हैं. हमने बच्चे किया है बार ग्राफ. बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में डिफरेंस क्या है? बार ग्राफ में हम लोग बिटवीन टू बार्स सेम विड्थ हम लोग छोड़ते हैं. ठीक है, बिटवीन टू बार्स विड्थ शुड बी देयर, सम गैप शुड बी देयर, सम स्पेस वी लेफ्ट बिटवीन टू बार्स. ठीक, बट इन द केस ऑफ हिस्टोग्राम हम कोई भी स्पेस नहीं छोड़ते. एंड द विड्थ ऑफ दिस ईच बार शुड बी सेम. जब आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो जो एक स्क्वायर है आपके ग्राफ का, उसको एक लेके चलिएगा 0 to 10, नेक्स्ट स्क्वायर हो जाएगा 10 to 20, देन नेक्स्ट 20 to 30 एंड सो ऑन. सी द नेक्स्ट वन 20 to 30 में हमारी 15 हो गई. नेक्स्ट है 30 to 40. 30 to 40 इंटरवल पे कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 10. तो 10 मुझे नजर आ रही है इधर. ठीक, 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये गया मेरा 30 to 40 इंटरवल.
कितनी फ्रीक्वेंसी हमने कवर की यहां तक? 10। ठीक, ये मैंने लिया फॉर माई आइडिया, आप ग्राफ कॉपी से बना रहे हो, देन नो नीड टू शो दिस थिंग। सी फॉर द नेक्स्ट इंटरवल 40 to 50, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 6। अब 40 to 50 इंटरवल आ गया, 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें चलना है फॉर दिस इंटरवल 40 to 50। ये है मेरे पास फ्रीक्वेंसी 6। ठीक, ये है बच्चे हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम और बार में, जो बार ग्राफ है और हिस्टोग्राम है, उसमें मेन डिफरेंस क्या है? पहले तो ये कि बिटवीन टू बार्स बार ग्राफ में स्पेस होती है बट हिस्टोग्राम में स्पेस नहीं होती। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। ठीक, और जो हमारा हिस्टोग्राम है उसमें दिस विड्थ ऑफ ईच ग्राफ शुड बी सेम। जो हमारी विड्थ होगी हर बार की वो क्या होगी? सेम। ठीक है, विड्थ ऑफ ईच बार शुड बी सेम। ये एक पॉइंट हमने ध्यान में रखना है। एंड along the x-axis always we have to take class intervals। ये जो क्लास इंटरवल्स हैं ये ऑलवेज हमने x-axis की तरफ लेके चलने हैं, एंड द फ्रीक्वेंसीज वी हैव टू टेक along the y-axis। ये चीजें ध्यान में रखनी है। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर इंटरवल्स इंक्लूसिव हैं, बड़ी बात बता दिया बेटा, प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना कि इफ द इंटरवल्स आर इंक्लूसिव then we have to convert that inclusive intervals into exclusive। अब पता कैसे लगेगा कि इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है? बताया, अगर हमारे पास क्लास इंटरवल की, फर्स्ट क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट सेकंड क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट के सेम आ जाए, इक्वल आ जाए, देन द इंटरवल्स आर एक्सक्लूसिव इंटरवल्स। लेकिन अगर मेरे पास इंटरवल्स चल रहे हैं 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30 लाइक दिस, तो ये है हमारे पास इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स, एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस इंक्लूसिव इनटू एक्सक्लूसिव। ये है हमारे पास हिस्टोग्राम वेयर द एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स आर देयर। Let us take an example of histogram where inclusive class intervals are there. Now, this is the example of histograms having inclusive class intervals. See, in this case, our class intervals are of the type 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40. Okay. Now, the upper limit of the first interval is not equals to the lower limit of the second interval. In this case, we consider that this interval, these types of intervals, these type of classes are known as inclusive class intervals. So, our first task is to convert these inclusive class intervals into exclusive. कैसे करेंगे हम exclusive में convert? With the help of adjustment factor. बताया गया था adjustment factor क्या है? हमें लोअर लिमिट लेनी है सेकेंड इंटरवल की, माइनस करनी है अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। क्या बन जाएगा? 1/2। दिस इज 0.5। अब इस 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर देना है फ्रॉम द लोअर लिमिट्स और 0.5 को ही ऐड कर देना है इन द अपर लिमिट्स। दैट मीन्स यहां पे हो जाएगा -0.5, इधर +0.5। ठीक है, जो हमारे पास अपर लिमिट्स हैं उसमें हम लोग प्लस कर देंगे 0.5 प्लस, और जो लोअर लिमिट्स हैं उनमें से हम लोग जो एडजस्टमेंट फैक्टर आया है उसको माइनस कर देंगे 0.5। ये चीज ठीक। अब बच्चे सबसे पहला काम मेरा क्या है? कन्वर्ट करना है मुझे इन इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में। तो 1 - 0.5 मेरा क्लास इंटरवल बना 0.5। 2 कहां तक गया? 10 + 0.5 10.5। Then 11 - 0.5 10.5। This is 20.5
Next 21 minus 0.5, 20.5. Then 30 plus 0.5, 30.5. 31 minus, this is 30.5 to 40.5. अब ध्यान से देखो, जो मेरी अपर लिमिट है फर्स्ट इंटरवल की, वही मेरी लोअर लिमिट है सेकेंड इंटरवल की. दैट मीन्स ये बन गया मेरे पास एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स. और अगर ये एक्सक्लूसिव बन गया तो हम लोग यहां से हिस्टोग्राम बना सकते हैं. ठीक है, फ्रीक्वेंसीज क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हम लिख रहे हैं 7. दिस वॉज माई टेबल ऑफ दैट क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी थी 12, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है 15 एंड द लास्ट वन इज 13. ठीक, अब सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात वो क्या है बेटा, जो ग्राफ शुरू हुआ. ठीक है, इन द प्रीवियस वन हमने देखा था वो था 0 से 10. ग्राफ 0 से ही शुरू हो रहा था, लेकिन अब कहां से शुरू हो रहा है, 0.5. अगर मैं कहूं ये 1, यहाँ पे 1 कहीं आ रहा था, इधर 1 था, तो मतलब 0.5 यहाँ कहीं हुआ. ठीक, ये चीज हुई मेरे पास 0.5, मतलब 0 पे नहीं है, उससे कुछ आगे है. अगर आपका ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं होता, अगर आपका ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा, देन वी हैव टू मेक अ किंक. हमें फिर एक किंक वहां पे शो करना पड़ता है. किंक और जिगजैग कर्व जो है वो ये बताता है कि ग्राफ इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन. स्टार्टिंग पॉइंट कुछ और है. द ग्राफ इज 0.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन. जितना भी हमारे पास डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुका है, 40 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, 0.5 यूनिट्स. ठीक, kink only represents that graph is not starting from the origin, from point 0, 0. ठीक, so I'm going to, this is my x-axis and y-axis. Now I'm going to start my this histogram, making histogram 0.5. This is 10.5. Next 10.5 to 20.5. This one is 30.5. This is 40.5. Along the x-axis we have to take class intervals. Don't forget this, that along the x-axis we have to take class intervals. ठीक है, and along the y-axis we have to take frequencies. Along the y-axis we have to take frequencies. Now frequency कैसी है, 7, 12, 15, 13. So it's up to us. अगर हमें लेके जाना है 10-10 का डिफरेंस, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया एक ग्राफ को 10 यूनिट्स के अकॉर्डिंग, तो 10 में यही पे 7 आ जाएगा. नेक्स्ट 10 to 20 में 12, 15 और 13 मिल जाएगा. इट्स माई विश. कहीं 5-5 के डिफरेंस पे बनाते हैं. ठीक, अब हम 2-2 के डिफरेंस पे बना लेते हैं. 2, 4, 8, 10, 12, 14, this is 16. देखो मेरे सारे ग्राफ इसमें आज, oh, 1 is missing, 6 is missing here. So this is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. This one is 16. Now from 0.5 to 10.5 कितने यूनिट्स ट्रेवल कर लिया उसने 0.5 से 10.5 में? 7 यूनिट्स. तो 7 तो नजर आ रहा है मुझे 6 और 8 के मिड में, यानी कि ये बनेगा मेरा यहाँ पे बार. ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी ट्रेवल कर ली उसने? 7. एंड फ्रॉम 10.5 टू 20.5 उसने ट्रेवल किया 12 यूनिट्स. फ्रॉम 10.5 टू 20.5 12 यूनिट्स. दैट मीन्स दिस इज व्हाट, दिस इज द 12 यूनिट्स. ठीक है, यहां होगी हमारी फ्रीक्वेंसी 12 यूनिट्स कवर. एक हमारे पास बार थी जो कि 7 फ्रीक्वेंसी तक गई. नेक्स्ट गई मेरे पास अप टू 12. नेक्स्ट देखिए बेटा, क्लास इंटरवल क्या है, 20.5 से 30.5 तक. और फ्रीक्वेंसी कितनी दी है उसकी? 15. दैट मीन्स ये जो कि लाई करेगी 14 to 16 के बीच में,
14 से लेके 16 के बीच में लाई की, और ये फ्रीक्वेंसी किसकी है? 20.5 से 30.5 तक। मेरे बिल्कुल किसी ग्राफ में देखिए कोई विड्थ नहीं है, कोई गैप नहीं है, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा जब आप ग्राफ पेपर पे बनाते हैं तब ज्यादा एक्यूरेट आता है, आपकी जो विड्थ की बार्स की जो विड्थ है वो सेम रहेगी, ठीक है। 30.5 से 40.5 तक कितना ट्रेवल कर लिया उसने? 13 यूनिट्स। यहां कहीं पे गया 30 यूनिट्स, ये आ गया मेरे पास 13, ठीक। सो दिस इज द वे टू मेक द हिस्टोग्राम। क्या क्या बता दिया हमने? अगर एक्सक्लूसिव है तो हमने डायरेक्ट एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल्स लिया, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ली, एंड वी जस्ट शो द बार्स बट विदाउट हैविंग स्पेस बिटवीन टू बार्स, ठीक है। इनकी विड्थ सेम होनी चाहिए, एंड इफ आवर क्लास इंटरवल्स आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 0, अगर मेरा ग्राफ 0 से शुरू नहीं हो रहा, इन दैट केस वी हैव टू मेक द किंक को हम लोग zigzag कर्व भी कहीं कह देते हैं, एंड दिस किंक मीन्स दिस ग्राफ इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, दिस इज somewhat 0.5 distance away from the origin, or if it is from 10 to 20, then this is 10 units away, 5 units away, 40 units away, 20 units away. This kink represents this thing. And if the inclusive intervals are there, then we have to convert and we have to find out actual limits. These are the actual class limits, and how we can find? With the help of adjustment factor. This is adjustment factor. Adjustment factor कैसे find out किया? Lower limit of the second class minus upper limit of the first class, and जो हमारे पास आंसर आया उसको हमने सारी लोअर लिमिट्स में से सब्ट्रैक्ट कर दिया और सारी अपर लिमिट्स में से प्लस कर दिया, ठीक। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। What is frequency polygon? When the midpoints of the adjacent class intervals of the given frequency distribution joined by straight line segments, the figure so obtained is called frequency polygon. ठीक, frequency polygon क्या है हमारे पास? जब बेटा हम लोग अपने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, अपने एडजेसेंट क्लास इंटरवल्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, एक फिगर हमारे पास मिलती है, उसे हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करने के वी आर हैविंग टू मेथड्स, आइदर वी कैन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम और विदाउट हिस्टोग्राम, चॉइस इज आवर्स, ठीक है। हाउ कैन वी ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम? लेट अस स्टार्ट विद दिस फर्स्ट वन विद हिस्टोग्राम्स। सी, I am having an example of where the age in years of some doctors, ठीक है, that is given to us. Age, the class intervals of ages from 25 to 30. How many doctors are there? 40. From the age 30 to 35, 60 doctors are there. For the age 35 to 40, 50 doctors are there, and 40 to 45, 35 doctors are there. So we can consider this number of doctors as the frequency given. Come to the first thing, this is age, class interval, this is number of doctors, frequency. Now the first step is we have to make our class intervals on x-axis and frequency on the y-axis. Again the graph is starting from 25, so we need to draw the kink, because this kink shows that graph is not starting from the origin. It is somewhere starting from 25, which is 25 units away from the origin. ठीक, अब 25 to 40, 25 to 30 एज में कितने डॉक्टर्स हैं? 40. तो सबसे पहले we are going to start making our histogram, because we are going to deal with the frequency polygon with the help of histogram. Now between the age limit 25 to 30, number of doctors are there? 40. 25 to 30, how many doctors are there? 40. So I'm going to draw the histogram within this age limit, 40. 30 to 35, how many doctors are there? 60.
between this 30 to 35, total number of doctors are 60. 35 to 40, 50 doctors are there. 50 doctors are there between this 35 to 40. And 40 to 45, how many doctors are there? 35 lies between this 30 and 40. This is 40, 60, 50 and this is 35. 35. ये तो हुआ बच्चे हिस्टोग्राम हमने प्लॉट किया. हमने प्लॉट करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. कैसे प्लॉट करेंगे? जो हमारे मिड पॉइंट्स हैं 25 और 30 में, ये जो मेरा हिस्टोग्राम का मिड पॉइंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन मिड पॉइंट्स को फाइंड आउट करो. नाउ इट्स योर विश इफ यू वांट फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ क्लास मार्क, है ना? हाउ कैन वी फाइंड आउट? 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 55 by 2, and we can solve this 55 by 2, 2 to the 4, 2 7 the, this is 27.5 around. ठीक. और let me write this one clearly. क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करेंगे? 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 55 by 2, 2 to the 4, 15, 2 7 the 14, 1, 27.5. 27.5 के यहीं पे 25 और 30 के बीच में लाई कर रहा होगा. ठीक है. तो जहां जहां आपको सेंटर पॉइंट्स नजर आते हैं, मिड पॉइंट्स, मेरे इस क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट्स, अगर बेटा आप अपना स्क्वायर एक डील करते हो, लेट अस सपोज ये मेरे पास वो स्क्वायर है, ग्राफ कॉपी का स्क्वायर. ठीक है. तो 25 और 30 का मिड पॉइंट आपको ये नजर आ रहा है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप मिड पॉइंट मार्क कर सकते हो. ठीक है. इट इज क्वाइट इजी फॉर यू पीपल व्हेन यू आर प्लॉटिंग दीज थिंग्स ऑन योर ग्राफ पेपर. अब ज्वाइन कर देना है इन मिड पॉइंट्स को. सी, जैसे मैं ज्वाइन कर रही हूं, 40 को ज्वाइन किया 60 वाले के साथ, 60 को किया 50 से, देन 50 को किया 35 के साथ. ठीक है. ये बना मेरे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को हमें हमारी एक्स एक्सिस पे भी ज्वाइन करना है. सी, अब मेरा लास्ट इंटरवल था 40 टू 45, 40 से 45, 5 का तो डिफरेंस चल रहा है, मतलब नेक्स्ट 45 से 50 में भी मैंने शो करना है अपना इंटरवल. और 25 से 30 से शुरू हुआ था, 25 से 20 से 25 वाला भी शो करना है. हमें हमारे इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ज्वाइन करना है विद एक्स एक्सिस. दैट मीन्स यहां पे मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा मेरा मिड पॉइंट इस 20 से 25 का, एंड हमें ज्वाइन करना है इसको बस मिड पॉइंट के साथ. सिमिलरली जब 45 से 50 का भी हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, देन हमें इसे इधर ज्वाइन करना है. दिस इज कंप्लीट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बाय यूजिंग हिस्टोग्राम. अगर बच्चे यहाँ पे आपके पास एक्सक्लूसिव इंटरवल की जगह इंक्लूसिव हुआ, दैट मीन्स आपको फर्दर पहले इंक्लूसिव इंटरवल्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव में. ठीक. अगर आपके पास इंक्लूसिव इंटरवल्स आ गए, then you have to convert that inclusive into exclusive intervals. पहले आप कन्वर्ट करेंगे. ठीक. देन आप लोग प्लॉट करेंगे अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. अगर किंक रिक्वायर्ड है, अगर वो ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा, देन यू हैव टू ड्रॉ द किंक, अदरवाइज यू लूज योर मार्क. ठीक. एंड यू हैव टू शो क्लास इंटरवल्स along the x axis, frequency along the y axis. Then just plot the histograms. Find out the midpoints of these histograms, join by using a straight line. ठीक. और इससे एक प्रीवियस इंटरवल का भी मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, जो लास्ट इंटरवल था उसके नेक्स्ट इंटरवल का भी मिड पॉइंट ज्वाइन कर देना है. फर्स्ट हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट को इसके साथ, लास्ट हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट को इसके साथ, देन हमारे पास एक कंप्लीट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आए. ये तो था विद हिस्टोग्राम. अगर क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, देन चॉइस इज योर्स, आइदर यू कैन ड्रॉ विद हिस्टोग्राम और विदाउट हिस्टोग्राम. ठीक. दिस इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बाय यूजिंग हिस्टोग्राम. नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप वेयर वी हैव टू ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट histograms.
In the first case, we have done with histograms. In the second case, we are going to draw our frequency polygon, but without using histogram. In this case, we are not going to plot histogram. We just directly shows the midpoint. We then plot the point of that midpoint and the frequency corresponding, and just join the lines, we'll get the frequency polygon. See, it is given to us that for this class interval, this is a given frequency, we have to draw the frequency polygon, but without using histogram. This is a class interval 10 to 20. So first of all, I am going to take my class intervals along the x-axis and my frequency along the y-axis. ठीक? So this is the frequency 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. These are the intervals 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80. एक इंटरवल नेक्स्ट गए क्योंकि हमें ज्वाइन करना है उनको भी. ठीक है, दिस इज ओनली रीजन कि मैंने एक एक्स्ट्रा लिया. फ्रीक्वेंसी है 4, 8, 12, 10, 7, 4. इट्स माई चॉइस. अगर मुझे 4 के टेबल पे जाना है देन आई कैन मार्क अकॉर्डिंग टू दैट, बट इफ आई वांट टू प्लॉट विद अ टेबल ऑफ 2, इट्स माई चॉइस. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, that's it. ठीक, ये आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसीज. अब बेटा फर्स्ट स्टेप क्या है, मुझे फाइंड आउट करना है क्लास मार्क. किया हमने क्लास मार्क, उधर भी था फाइंड आउट, बट अगर विद हिस्टोग्राम आप क्लास मार्क में ही भी फाइंड आउट करते, डायरेक्ट आप लोग इसके मिड पॉइंट से कर लेते हो, वो भी आपके लिए इजी है. बट जहां विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम है, क्लास मार्क फाइंड आउट किया, क्या बन जाएगा 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2. 30 डिवाइडेड बाय 2 15. इसका कितना आ जाएगा. अब जितना डिफरेंस इनमें है उतना ही डिफरेंस इनके क्लास मार्क्स में. तो नेक्स्ट आएगा 25, 35, 45, 55 एंड दिस वुड बी 65. ये आ गए हमारे पास क्लास मार्क. अब हमें बचे अपने इस ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं. कौन से पॉइंट्स प्लॉट करें. क्लास मार्क. क्लास मार्क तो हो गए क्लास इंटरवल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब ये जाएंगे एक्स एक्सिस पे. फ्रीक्वेंसी ये थी वाई एक्सिस पे, मतलब मेरे पास एक पहला पॉइंट आया जो प्लॉट करना है, वो है 15, 4. Along the x-axis I have to show 15 and along the y-axis 4. Then the next one is 25, 8. फिर नेक्स्ट क्या है 35, 12. उससे नेक्स्ट 45, 10. फिर ठीक इस तरह से हमारे पास जो बाकी क्लास इंटरवल्स हैं हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी करें. लेकिन एक चीज और यहाँ पे हमें देखनी है, वो क्या है कि जो हमारा ग्राफ है, जो मेरा क्लास इंटरवल्स है, वो 10 से शुरू हो रहे हैं, ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहे. अगर बेटा ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहे, दैट मीन्स वी हैव टू ड्रॉ अ किंक. दिस मीन्स this graph is class interval is away from the origin, 10 units away from the origin. ठीक, वो चीज हम यहाँ पे शो कर रहे हैं. अब 10 to 20 पे 15 है और 15 और y का है 4, तो ये आ जाएगा वो पॉइंट हमारे पास. लेट अस सपोज ये है वो पॉइंट 15, 4. शो कर देना है उस पॉइंट को. ठीक है, नेक्स्ट है 25 और 25 के कॉरेस्पॉन्डिंग है 8. 25 के कॉरेस्पॉन्डिंग है 8. मैंने इसको भी मार्क कर दिया. दिस इज 25, 8. ठीक, फिर देन नेक्स्ट है 35, 12. दिस इज 30 to 40, 35 एंड दिस इज माई 12. मार्क कर दिया इसको भी 35 से 12. नेक्स्ट वन इज 45 to 10. 45. This is 45 to 10. Next one 55 and 7. 55 and 7. 7 lies between 6 and 8. This is 7. This is 55. ये आ गया बेटा हमारे पास पॉइंट जहां x एक्सिस पे था 55
और y एक्सिस पे लिया हमने 7। इन द नेक्स्ट वन जब हम बात करते हैं अपनी 65 की, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है 4, मतलब वो यही रह गया 65 to 4। ये तो हुआ हमने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, मिड पॉइंट्स अपनी इसकी हेल्प से। ठीक है, बाकी ये दोनों भी लिख लेते हैं। ये क्या बन गया 55 and 7 एंड द नेक्स्ट वन इज 65 and 4। हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट टास्क क्या है, हमें ज्वाइन करना है इन पॉइंट्स को। ये हमने ज्वाइन कर दिया, ये हुआ मेरी ज्वाइनिंग, वी हैव टू ज्वाइन। ठीक, ये तो बन गया जी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बट एक चीज रह गई, वन थिंग इज मिसिंग हियर, वो क्या है, एक्स एक्सिस के साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ज्वाइन ही नहीं हुआ। उसके लिए जो 10 to 20 जो हमारे पास गिवन इंटरवल था, उससे एक पिछला इंटरवल हमने कंसीडर किया, दैट इज 0 to 10 एंड द मिड पॉइंट ऑफ दैट 0 to 10 इज हियर, दैट इज 5। हमें इसको 5 के साथ ज्वाइन करना है। एंड the next interval of 60 to 70 is 70 to 80. Find out the midpoint, that is 75. We have to join this one also. This is the frequency polygon without using histogram. So we have completed our chapter statistics. In this video we have done the graphical representation of the data. The first one is histogram and the second one is frequency polygon. For the frequency polygon, we have done two types, with using histogram or without using histogram. So try to draw these histograms and frequency polygons on graph notebooks by your own. This is all for today's lecture and thank you.